back to this YouTube channel. So as you saw in the title of this video, that this video is mainly for those students who are going to start their 10th journey. So you will be having so many questions in your mind that is 10th is hard to crack, these boards are difficult, what we have to study, what kind of books we have to prefer. So you're not needed to panic that much because 10th class is easier than your 9th standard. Okay, so here I am first of all we will take a look to some tips that I had prepared for you all so that you can follow them and make your study more easier. Now, second thing is that we will be discussing the 9th syllabus of class 10 so that you can prepare a mind map in your mind at how you have to learn them. Okay, how you have to make your concept stronger. So first of all, we will discuss the following steps to follow that will make your study easier than before. Okay, so the first step is begin early. So most of the students who are watching this video, maybe your exams has finished or they are about to finish. So all you have to do is to after 2-3 days your exams had finished, you have to start your 10th syllabus as early as possible so that you can complete the syllabus earlier and the leftover time you can utilize in your revision. So first thing is that you have to begin your syllabus earlier. So the second thing is that make your concepts clear. Concept refers to the basics. So all the basics that you have studied in your 9th standard are going to help you a lot in your 10th studies. So all you have to do is to build your concepts as stronger as possible. You have to not to forget any kind of things, any kind of information that you had studied in your 9th standard. You have to keep revising them. Okay, they are important for 10th also. Now the third thing is stick to a timetable. So as you are capable of studying 3 hours, 4 hours, 1 hour, 2 hours, you have to prepare a timetable of each and every subject. You have to prepare each and every subject because every subject is important in 10th standard. Okay, so you have to make a timetable according to your capacity and stick to it so that you can complete your syllabus as early as possible. Now the next point is follow any mentor. So all you have to do is to follow any kind of mentor over YouTube channels और any coaching centers. This will help you to guide you. ठीक है, जैसे कि आपने अपना कोर्स स्टार्ट किया, you are doing self study and you are preparing everything very well. But any kind of mentor you are following, he or she will give you a very basic or informative information that are going to help you in your 10th examinations. Okay, so you have to follow any kind of mentor. You can follow them on YouTube also. You can follow them on any coaching centers also. ठीक है. Next thing is that categorize subjects. So as the subjects of 9th standard, 6 subjects are there. They will be same as in your 10th standard also. So all you have to do is to categorize your subjects. Which subjects is more weaker, you have to give them a lot of time. जो subjects weak है उसमें ज़्यादा time spend करना होगा and the subjects which are stronger you have to make it more stronger than before so that you can crack your examination very clearly. Okay. So these are some steps that you have to follow before starting any kind of syllabus, any kind of book or anything else. Okay. And the second thing is that which kind of book you have to refer for class 10. So the first thing is you have to clear your NCERT first of all. Okay, NCERT is the basic for any kind of question. If you are solving any hard question for any other book, even it is of mathematics or any physics numerical. So firstly, all the basics of NCERT should be very clear to you. Then you will be able to solve any kind of question of any standard. Okay. Now coming to our main subject of this channel, that is the mathematics. So class 10 mathematics is quite similar to your 9th standard mathematics. जितना भी आपने 9th में पढ़ा उससे ज़्यादा आपको कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा 10th क्लास में with the same chapters. As you can see, the chapter number first is a real number जो आपके 9th standard में भी था, जिसमें आपने रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स, नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, इन सब के बारे में डिस्कस किया था हमने. और हमने क्या डिस्कस किया था, जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो कौन से होते हैं, जो रिपीटिंग होते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस इन योर 9th स्टैंडर्ड. नाउ व्हाट इज इन द 10th स्टैंडर्ड, रियल नंबर्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर रखना है, दैट इज व्हाट, दैट इज द नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर. यही दोनों हमारे रियल नंबर्स को फॉर्म करते हैं. सो दीज आर द बेसिक्स फॉर दिस चैप्टर. आफ्टर दैट व्हाट वी विल स्टडी न्यू इन दिस चैप्टर in class 10. So two things are there, that is the Euclid's division lemma and Euclid's division arithmetic. So what are these both? मतलब इनके names काफ़ी बड़े बड़े हैं but they are nothing. All you have to learn in these topics, that is actually what you had learned in your 5th and 6th standard. The HCF, LCM, even number, odd number, prime number, composite number, co-prime numbers, जितने भी basics हमने अपने काफ़ी small standards में पढ़े होंगे even in 5th and 6th standards,
these all things are going to come back in your 10th standard. So you can see the first chapter of this book, मैथ्स एनसीईआरटी बुक इज द रियल नंबर, जो कि काफ़ी इजी होने वाला है. कुछ चीज़ें जो हमें नए नए एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, वी विल डिस्कस इन द सेशन ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट. नाउ द सेकेंड चैप्टर यू कैन सी इज द पॉलिनॉमियल. सो यू आर वेरी मच फेमिलियर ऑफ पॉलिनॉमियल्स कि क्या होते हैं. सो ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इज द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स जो आपको आते हैं, जीरोज ऑफ कोफिशिएंट्स, ये कुछ नया सा है जिसको आपको एक्सप्लोर करना है इस चैप्टर में. एंड द लास्ट थिंग इज एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनॉमियल्स, ये भी कुछ न्यू है. सो ऑल यू कैन सी दैट कि आधे से ज़्यादा चीज़ें आपने इसमें डिस्कस कर रखी हैं, बट देयर आर समथिंग न्यू दैट यू कैन एक्सप्लोर इन दिस बुक. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. सो इसमें से जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, ये तो एक चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इन अ 9th क्लास. यहाँ पे क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, पेयर्स, यानी कि हम दो लीनियर इक्वेशंस को एक साथ यहाँ पे डील करने वाले हैं. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सच अ बिग डील फॉर यू. ऑल यू हैव टू डू इज टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स वेरी मच क्लियर. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं, ये चीज़ पहले आपको क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हम इसके पेयर्स पे आएंगे. ओके, सो इसमें बेसिकली हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया था ग्राफिकली. नाउ in this session in our 10th class we are going to represent the pairs of linear equation and graphical. मतलब हम दो के पेयर्स को, और यू कैन से कि हम एक पेयर, मान लीजिए दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमें दो मिलेंगी और उन दोनों को हमें एक साथ एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू थिंग फॉर यू. सेकेंड थिंग इज दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. उसके बाद है रिड्यूसिबल equations. So reducible equation is also a new thing for you guys. So all you have to do is to just make your concept clear of your 9th standard, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे चैप्टर्स जो है वो क्या है, सेम है your 9th and 10th both. Now चैप्टर नंबर 4 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बिल्कुल नया टॉपिक है, कुछ नई चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी बहुत सारी. सो क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में गिवन है, जो इसके सब टॉपिक्स है वो है इसके सॉल्यूशंस के. हम इनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है हम ये भी डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट थिंग इज दैट नेचर ऑफ रूट्स. तो जो हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, दिस थिंग, इनका हम नेचर, एक कुछ अलग सा टॉपिक है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. ओके, नाउ द फिफ्थ चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये भी बिल्कुल एक न्यू चैप्टर है जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. सो जैसे कि 9th स्टैंडर्ड में 15 चैप्टर्स आर गिवन इन द मैथमेटिक्स, सिमिलरली इन योर 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो देयर आर 15 चैप्टर्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट 5 चैप्टर्स. सो हियर आर अनदर 5 चैप्टर्स. सो इन 5 चैप्टर्स में से ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड सर्कल्स, इन तीनों चैप्टर्स को हमने 9th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया है. बट व्हाट इज द न्यू, न्यू इज ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है आपके 10th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट होता है. सो इन द 10th स्टैंडर्ड यू विल बी रीडिंग द इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो मैनी स्टूडेंट्स had heard from their seniors that this chapter is that much tough. So it is not going to be that much tough as you are thinking. जितने अच्छे से इसके बेसिक्स को क्लियर कर लेंगे उतने अच्छे से ये चैप्टर भी आपके लिए ईजी हो जाएगा. सो these chapters are also easy if you will study them properly. Okay, तो 6th चैप्टर हमारा ट्राइंगल्स, जिसमें हम फिर से एक बार कॉन्ग्रुएंसी वाली थिंग्स को डिवीजन करेंगे इस चैप्टर में. आफ्टर दैट कुछ नई नई चीज़ें हमें इसमें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी. दैट इज एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो उनका एरिया कैसे निकलेगा. अ बिट न्यू थिंग्स आर देयर इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट थिंग इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि काफ़ी इजी चैप्टर था इन योर 9th स्टैंडर्ड. इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला, सेक्शन का फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट वे में. यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो गई है आपकी. इसमें हमने जितने भी टॉपिक्स के नेम लिए, इन सारे टॉपिक्स में से कुछ भी नहीं था इन 9th स्टैंडर्ड, राइट. इन द 9th स्टैंडर्ड ये चैप्टर काफ़ी ईजी चैप्टर था, बट इन दिस सेशन you are going to study a lot of things in this chapter. Okay, so this is important, you are not needed to ignore this chapter. Now ये दोनों चैप्टर्स हमने भी डिस्कस किए. नाउ 10th चैप्टर इज सर्कल्स. सर्कल्स क्या होते हैं, सर्कल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इन 9th स्टैंडर्ड. तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट्स के बारे में. टेंजेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो दैट इज सर्कल, और इसके ऊपर से अगर कोई लाइन पास होती है बाहर के साइड में तो हम उसे क्या नेम दे देते हैं, टेंजेंट्स का नेम दे देते हैं. तो हम इसको और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन दिस सेशन. सो यहाँ पे हमने 10 चैप्टर्स कंप्लीट करे, जिसमें से काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. सो
Don't be worried, 10th class is going to be easy for you. Okay, now the last 5 chapters are here. So now here are the last 5 chapters of your Maths NCERT book of class 10th. So इसमें से the best part is कि statistics और probability, ये chapters यहाँ पे as it is given है, 15 chapter is probability and 14 chapter is statistics. So इन दोनों chapters में भी कुछ नहीं है. Statistics में mean, median and mode को हम कुछ और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. After that प्रोबेबिलिटी में क्या है, कुछ अलग टाइप से एक्सपेरिमेंट, जैसे कि अभी तक हमने डाइस का एक्सपेरिमेंट, कॉइन्स का एक्सपेरिमेंट, कार्ड्स का किया है इन योर 10th स्टैंडर्ड, हम इसको भी आगे एक्सप्लोर करते चलेंगे. सो ये दोनों चैप्टर्स तो यहाँ पे है, मतलब द थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी. नाउ 11th चैप्टर इज द कंस्ट्रक्शन, जो चैप्टर फिर से आपके 9th स्टैंडर्ड में था, एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑल्सो. सो इसमें तो हमने जैसे कि काफ़ी सारे शेप्स को डिस्कस कर रखा है इन द 9th स्टैंडर्ड. इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि अगर दो शेप्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, मान लेते हैं क्यूब है, क्यूबॉइड, दोनों को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो उसका सरफेस एरिया निकालना, उसका वॉल्यूम निकालना. ठीक है, कुछ नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम इस चैप्टर में. उसके बाद क्या है, एक हम फ्रस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, फ्रस्टम ऑफ अ कोन. फ्रस्टम ऑफ अ कोन कुछ नई चीज़ है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे. सो क्या है, चीज़ें वही हैं, बस कुछ नई चीज़ें आपको इसमें गिवन है. नाउ 11th चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम बात करने वाले हैं डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट. एक लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम इसमें, और एक टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन, वही जो सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट बनाते थे हम, उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो इस चैप्टर में गिवन है. नाउ चैप्टर नंबर 12 इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी कि पहले तो हम सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल का एरिया हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे हम सर्कल से रिलेटेड चीज़ों के एरियाज निकालेंगे. जैसे कि एक सर्कल है, उसका मिड पॉइंट ये रहा, अगर मैंने यहाँ से एक रेडियस डाली, यहाँ से एक रेडियस डाली, तो ये क्या बन गया, इसको हम सेक्टर कह देते हैं. ये क्या हो गया, हमारा एक सेक्टर है. तो इस सेक्टर का अगर हमें एरिया निकालना है तो वो कैसे निकलेगा. ओके, अगर हमने एक आर्क लगा रखा है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर एक आर्क है, ये मेजर आर्क है, तो उसका जो एरिया है उसको हम सेगमेंट कहते हैं. तो इन सब का एरिया कैसे निकलेगा, यानी कि सर्कल से रिलेटेड चीज़ों के एरियाज फाइंड करेंगे हम इस चैप्टर में. 13th chapter surface and volume, 14th and 15th are statistics and probability. So we have completed all the chapters of maths class 10th. So इसमें से half and more जो chapters थे वो कैसे थे, 9 chapters से काफ़ी ज़्यादा similar थे 9th class के chapters से. Okay, so as you had seen that there are so many chapters related to the class 9, so things are going to be a lot of easy for you guys. So don't you worry, just start your syllabus as early as possible, and I am here to help you. I will be uploading the regular videos of these all the chapters. So stay connected with my channel just by subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching. Thank you.